planning this session for 3 months now, so this has been queued up, but very much an exercise and a work in progress, as you know, we'll discuss further. I'm Suruchi Kupchandani, the curator of Craft X Climate series of Creative Dignity. This series is an effort to identify interaction between craft's value chain and its intersection with environmental resources. So craft कैसे interact करता है environment के साथ, चाहे water है, energy है, या ये materials हैं, cotton, wool, silk, clay, इनका क्या वातावरण से रिश्ता नाता है, हर रोज कैसे जुड़ा हुआ है हमारे काम के थ्रू. आज we have a very unique case study from Rajasthan, from a village called Kaladera. ये 42 किलोमीटर दूर है जयपुर से, चोमू तहसील में, और ये एक मड रेजिस्टिंग प्रिंटिंग नेचुरल डाइंग क्राफ्ट टेक्निक के लिए बहुत मशहूर है. प्री प्रेपरेशन जो होता है क्लॉथ का फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये बहुत वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है. करीबन कह सकते हैं कि 10,000 से 15,000 लीटर पानी हर रोज यूज होता है एक एवरेज वॉशिंग फैसिलिटी में फॉर प्री प्रेपरेशन ऑफ द टेक्सटाइल्स. ये वैल्यू चेन को इसलिए थोड़ा ज्यादा वाटर इंटेंसिव बना देता है, तो पानी की ज्यादा खपत होती है. आपको 2021 में लेके चलते हैं, वेयर अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मतलब कि कई लोग उसमें जुड़ गए. It happened in Kaladera and it was initiated by Meeta Mastani ji, who's joining us today from Bindas Unlimited. It is a social enterprise that makes contemporary textile prints in natural colors and contemporary craft designs. They work with rural artisans in Rajasthan, Gujarat, UP, and Meeta's initiative has been there since 1993. As a producer working with artisan communities in Kaladera, Meeta ji took a proactive step by joining hands with BPCP Rainwater Foundation, Manthan Kotri, Chaubandi Studio, and the artisan communities to set up two initiatives. One is rainwater harvesting and other is water recharge. Yeah, and this happened on the community land as well as in the private land in Kaladera, which we will understand more. To do so, let me introduce our key stakeholders, our key speakers here today. First is Meeta Mastani ji, and I have given you her introduction. Welcome, Meeta ji. Hi, thank you for inviting us all. And अब तेजाराम जी की तरफ चलते हैं. तेजाराम जी is from a community-based NGO called Manthan Sansthan Kotri. He has been at the helm of this organization since 1998. They work on diverse local issues which is related to sustainable development, and they work with the marginalized and excluded communities. So the idea is to empower them. ये around कह सकते हैं 120 villages में काम करते हैं जो अजमेर, नागौर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं. तेजाराम जी की एक्सपर्टीज है लो की वाटर कंजर्वेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, और एक पायलट जो कालाडेरा में हुआ उसके बारे में हम आज बात करेंगे तेजाराम जी के थ्रू. वेलकम तेजाराम जी. और हमारे थर्ड स्पीकर हैं जो हमें चौबंदी से कालाडेरा से ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर कृष्ण कुमार दोसाया. ये फोर्थ जनरेशन प्रिंटर डायर हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि इनके जो स्टूडियो, जो चौबंदी स्टूडियो नाम का जो इनका बिजनेस है, उसके साथ एक ऑपरेशनल वाटर रिचार्ज वेल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी जुड़ी हुई है. आज ये हमारे साथ साझा करेंगे इसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस, क्या रीजन था जो एक हैंडशेक हुआ है between BPCP Rainwater Foundation, Chaubandi Studio, Meeta ji's organization Bindas Unlimited and Manthan Kotri. So क्या रिलेशनशिप रहा है इनका, तो ये थोड़ा हम आज समझने की कोशिश करेंगे. As Meera had said, ये bilingual conversation होगी, so हिंदी इंग्लिश मिक्स. मीता जी, I will start with you. एंड थोड़ा सा हमें बताइए, एक निर्माता के रूप में जब आप कालाडेरा में इतने साल से काम कर रही हैं, तो ये जो जल संरक्षण का समाधान आपने सोचा, जो आपने ये दिशा दिखाई अपने जो कम्युनिटी उसको जुड़ी हुई है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजन थे? अपने काम के साथ थोड़ा सा इस संबंध में हमको बताइए. ओके, सो जैसा कि आपने बोला सुरुचि जी, natural dyeing and block printing with mud resist uses a lot of water. Pre-processing maybe, and during the production as well.
roughly 12 liters per liter for a meter of fabric is a very back of the envelope number which we have come up with. The idea of doing this work is to be sustainable. That's the whole purpose. सारा मकसद ही ये था कि हम ऐसा काम करें. 30 सालों में बहुत लोगों ने बोला है आप केमिकल कीजिए. there are मतलब अगर आप केमिकल प्रिंटिंग करेंगे तो we can do more colors. हम लोग there's a different kind of control with chemical printing, but मेरा कभी भी वो मकसद नहीं था. So now, if we are going to do natural dyeing, I think we are one of the largest producers of natural dyed fabrics, maybe in India, in quantity. सबसे ज्यादा कृष्ण कुमार जी मैं कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा हम लोग शायद 7 क्वांटिटी मात्रा सबसे ज्यादा हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग और नेचुरल डाइंग की करते हैं. नेचुरल डाई के. हाँ, तो अब फिर पानी का कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे हम पानी जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं. Over these 30 years, the water table has gone down from 50 meters to now 50 to now it is 400. It's close to 400. So the wells have gone deeper, water has reduced. Kala Dera, I don't know if any of you are aware, but wahan pe coke ka bhi plant tha. There has been a lot of protests. The plant is now not functional. Band ho gaya hai coke ka plant. It is used only as storage. And but traditionally it is also an area jahan pe bahut sara farming hota hai, and farming needs a lot more water. They are growing things like wheat, basically a lot of things which need water. So all told सब लोग बहुत यूज कर रहे हैं. इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी यूज हो रहा है. So we need to recharge the water. I mean, it's a no-brainer. We do need to recharge water, right? And since about 4 years before we started actually doing it, I had been asking the Chobundi family with whom I print, okay, how can we do this? Who can we ask? Is there anybody who has already done it in the area? हम किसी को ही नहीं जानते थे जिन्होंने इस एरिया में किया है ये water recharge. So I was in touch with BBCP Rainwater Foundation. Actually, I was in touch with Mireya, who runs BBCP Rainwater Foundation. And she was working in another area and they were planning to do water recharge in that other area in Rajasthan. It fell through, so they moved to this area and invited us to be partners, and we were very happy to do it with them. So actually, she introduced us to Teja Ramji. It's such a small world. Teja Ramji, आपके इतने दोस्त हैं जो मेरे दोस्त हैं, but we didn't know him directly. We only got to meet him through Mireya. फिर उसके बाद हम लोग काफी समय लगा because शुरुआत कर रहे थे, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था, ये भी दूसरी एरिया में थे. I think it took us about a year. 1 साल लगा है ना तेजा राम जी ये पूरा पहला वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में. पूरा प्रोसेस में था. हाँ, और हमने 2 जगह रिचार्ज वेल्स बनाए. एक कम्युनिटी लैंड में, काला डेरा में एक कम्युनिटी लैंड है जो कि वहां के प्रिंटर्स can use that area commercially. They have to pay a small fees and together वहां पे printing करते, वहां पे actually washing और dyeing करते हैं. So there are like these water tanks which collect water. They have a pump. They have land to dry it because you need to dry it in different areas. अगर एक रंग को एक एरिया में सुखाएंगे, दूसरे रंग को वहीं पे करेंगे तो आपका फैब्रिक खराब हो जाएगा. So you need a lot of space, you need a lot of water, you need electricity. तो उस एरिया में हमने एक वाटर रिचार्ज वेल बनाया और एक चौबुंदी फैमिली के प्राइवेट लैंड में वहां पे बनाया. Then the year after that, we made another tank which stores 100,000 liters of water. और वो 1 लाख लीटर पानी फिल्टर होके बारिश का ही पानी है जो इकट्ठा होता है और वो फिल्टर होके अंदर आता है उस टैंक में.
उसको हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू मीता। तो इस पॉइंट पे एक फिल्म दिखाना चाहूंगी जो इस पूरी स्टोरी को एक विजुअल रंग भी देगा और हमें समझने में मदद करेगा कि ये कौन सी लैंड है, कहाँ पे है, और कृष्ण कुमार जी का भी उसमें एक छोटा सा बाइट है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर हो जाएगा। Bhakti, my screen is visible, right? Ji Suruchi, yes, it is visible. Would you want to go to a full screen? Yeah. Yeah. Suruchi, we can't hear the audio. Sorry, you can't hear the audio? No. Even now? Yeah. You will have to share the audio also, I think. Can you come again? You will have to share the audio. Okay, 1 second. Or you can translate it for us while the video goes on. In ये case you हमारे are को यही using काम a कर रहे हैं हम headphone, लोग। और मैं you'll have to मतलब disconnect 5-6 the वीडियो हुई headphone. हमारे को, Can you hear आप it सुनाई now? दे रहे हैं? हाँ, हाँ. हाँ, दे रहा है, ठीक है, Yes. okay. यही काम कर रहे हैं हम लोग। और मैं प्रिंटिंग सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। मेरी कम्युनिटी है छिपा जो प्रिंटिंग सेक्टर में काम करती है, और ये हमारा पुश्तैनी काम है। और मेरे दादा परदादा, मेरे फादर, तो हम उनसे सीखे हुए हैं सब काम। जब मैं आई तब पानी जैसे एक हाथ का रस्सा होता था, उस रस्से को बांध करके बाल्टी बांध कर हमको निकाल लेते थे। और अब है जो पानी 300-350 फुट पर नीचे चले गया, तो ज्यादातर पानी की दिक्कत है अभी। पिछले 25 साल के अंदर 400 फीट में मतलब 300 फीट पानी नीचे जा चुका है, 350 फीट पानी नीचे जा चुका है। तो आने वाले टाइम में पानी पता नहीं है रहेगा या नहीं रहेगा, या हमें नदियों का सहारा लेना पड़ेगा, या पानी कहाँ से आएगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमारी उम्र तो चलो फिर भी कैसे कैसे निकल जाएगी, पर आने वाले टाइम में नई जनरेशन के लिए पानी की बहुत दिक्कत आएगी। And I've been working in this village Kaladera since 1993 with block printers in natural dyeing and hand printing. And we use a lot of water for our printing because natural dyeing requires a lot of water for washing and for dyeing. And all that water is wasted. It's about, now we're at the scale that it's about 10,000 liters a day. Water is used to wash these fabrics that we make. And all the water is wasted. It runs off. All of it just goes away. बहुत ज़रूरी काम था ये, और बहुत साधारण तरीके से ये रिचार्ज हो सकता है, क्योंकि जो कपड़े धुलते हैं, धोने के बाद जो बेकार पानी जाता है वो ऐसे ही ज़मीन पे फैल जाता है। तो उसमें क्या है कि हमारा जो भी कलर वाला जो पानी है वो सारा नेचुरल पानी होता है। तो नेचुरल वाटर ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन को भी नुकसान नहीं होगा। डाल दें, और उस नाली में क्योंकि मिट्टी है यहाँ, तो मिट्टी कुएं में न जाए उसके लिए हमने 2 फिल्टर सिस्टम लगा दिए। तो कोई बहुत बड़ी तकनीक नहीं है, इससे कम से कम 75% पानी वापस ज़मीन में चला जाएगा। देखिए यहाँ एक जो स्ट्रक्चर है वहाँ कम से कम 10 से 15 हज़ार लीटर पानी यूज़ होता है एक दिन में, और उस हिसाब से हमने करीब 15 फीट गहरा रिचार्ज कुआं बनाया, और उम्मीद है कि कम से कम उसमें 75% पानी चला जाएगा कुएं में और रिचार्ज हो जाएगा। और उसी हिसाब से हमने 2 फिल्टर भी बना दिए जहां मिट्टी जमा हो जाएगी और केवल पानी ही कुएं में जाएगा, ताकि वापस से उसको खाली करने का जरूरत बहुत कम पड़े।
So in short, this is the video and which brings me to you, Teja Ram जी. आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। ठीक है तेजा राम जी, आप इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रहे हैं इस प्रोजेक्ट में मंथन कोटरी। तो ये बताइए, जैसे आपको अप्रोच किया मीता जी ने और आप वहां पे आए, काला डेरा में आए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या कैचमेंट एरिया को स्टडी करना फर्स्ट स्टेप है, या समझना कि यहाँ पे क्या नीड्स हैं, या कम्युनिटी को मोबिलाइज करना फर्स्ट स्टेप है? तो क्या मतलब इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने में वेल और टैंक को किस तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करी आपने? ये दोनों तीन एक्टिविटी जो आप बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मीता जी ने तो सोचा ही था कि ये काम होना है, लेकिन ये कैसे होना है, इसमें ये दोनों तीन चीजें हैं कि जहां से पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको रिचार्ज करने की जगह है क्या, है ना। अगर जगह पूरी है तो उसके बाद है कि क्या, जिससे चौबुंदी में अगर पिंटू जी है या कम्युनिटी में बाकी लोग हैं, वो उतने ही सोच रहे हैं जितना मिता जी और बाकी साथी सोच रहे हैं कि नहीं हमें कैसे भी हो इस पानी को रिचार्ज करना है, तो फिर लोगों के साथ भी उतना ही बात करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपने कहा कि अगर हमें बरसात के पानी को लेना है, क्योंकि आइडिया ये था, मिता जी का ये कहना था कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहां अपना जो काम करे उसका पानी भी, प्लस जो बारिश का पानी उस एरिया हमारा वो पानी भी कहीं न कहीं हमें रोकना चाहिए। और चौबंदी एरिया में और कम्युनिटी एरिया में जितना बारिश का पानी होता है या जितना हमारे काम से पानी निकलता है वो कैसे न कैसे हम जमीन में डालें, वापस रिचार्ज हो। तो कम से कम जो बोरवेल से पानी आता कुछ परसेंट तो हम उसको वापस रिचार्ज कर सके। तो ये तो रिचार्ज के लिए तो थोड़ा सा जगह देख लिया कि भाई हमें रिचार्ज वेल बनाने के लिए थोड़ा नाली के लिए होना चाहिए। और अगर बरसात का पानी है तो फिर उसका छत का कैचमेंट एरिया, जैसे वहाँ कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ मंदिर है उसकी है, फिर चौबुंदी में जो वर्कशॉप की 3 सेट की बिल्डिंग है, तो भाई इसमें अगर कितना पानी आएगा पूरी बारिश की सीजन में और कितना बारिश का पानी हमें इसको स्टोर करना है, उस हिसाब से उसका एक कैलकुलेशन करके एक भाई हमें इतने 1000 लीटर का टैंक बनाना चाहिए। तो हमारा आइडिया शुरू में था कि हम 50,000 लीटर का बनाएंगे, लेकिन फिर पिताजी का एक था कि क्योंकि हम बना ही रहे हैं तो 50 का क्यों, थोड़ा 1 लाख का बनाए ताकि पूरा गुंजाइश हो जाए। और ये सही भी है क्योंकि उस छत पे जितना पानी आएगा वो स्टोर होगा और उसके एक्स्ट्रा पानी है वो ओवरफ्लो होके वही रिचार्ज कुएं में वापस रिचार्ज चला जाएगा। तो एक तरीके से इस पूरे इलाके में जो भी पानी आएगा, चाहे कपड़े धोने से पानी आ रहा है या बारिश का पानी आ रहा है, वो कहीं भी बह के बाहर नहीं जाएगा और वहीं अंदर कुएं में रिचार्ज होगा। तो ये रिचार्ज का आइडिया तो हमने थोड़ा पहले भी हमने कुओं से ये छत का जोड़ करके जो हमारे इलाके में जितने भी जो ऐसे बेकार कुएं पड़े हुए थे ना, उसमें हमने कनेक्ट किया हुआ है। सैकड़ों कुओं को ऐसे कनेक्ट किया हमने, छत से जोड़ा और सीधा सीधा सूखे कुएं को इसमें चालू थे अब ड्राई हो गए उनमें जोड़ दिया। लेकिन यहाँ क्योंकि कुआं था नहीं तो इसलिए हमको थोड़ा कुआं बनाना पड़ा, फिर नाले से कनेक्ट करना पड़ा। और जो स्टोरेज का जो 1 लाख लीटर का जो मिताजी ने आइडिया दिया था उसको हमने पाइप लगा के पाइप में उसको स्टोर कर दिया पानी को। अब वो पानी जैसे मिताजी बता रहे थे कि पीने के काम में भी आता है, कपड़े में भी काम आता है, दोनों तरीके से काम आता है। लेकिन इतना ही काम हमें कम्युनिटी और बाकी लोगों के साथ करना पड़ा कि क्या वो लोग भी इसके लिए इच्छुक है, तैयार है, नहीं है। तो दोनों तीन चीजें हैं, टेक्निकली भी हमें देखना है कि गुंजाइश है कि नहीं है, फिर कि जो इसके साथ काम करने वाले लोग हैं वो कितना मानसिक रूप से तैयार है, इच्छुक है कि हाँ ये करना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है। थैंक जी यू तेजा राम जी। आप ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायग्राम था जो आपने मेरे साथ शेयर करा था, हाँ हाँ तो थोड़ा सा हाँ एक टेक्निक भी समझ लेते हैं ये कैसे होता है। तो मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल बता सकते हैं उसको देख के। हाँ जी, हाँ जी। ये डायग्राम है, तो आपको ये हाँ ये दिख रहा है तो आपको? जैसे, हाँ जैसे इसमें ये हमने
एक छोटा सा बनाया कि भाई वाटर टैंक है ऑलरेडी, जो बोरवेल से पानी वाटर टैंक में आता है और वाटर टैंक में भी छोटे से टैंक में जाता है ये, और फिर वहां से जो कपड़े धोने की जो छोटे छोटे कुंड बनाए हैं उनसे जाता है, और फिर वहां से वापस होके जो पानी जमीन में जो फैल जाता था, जो उस कुंड जो कपड़े धोने वाली जो थैली है, वहां से फिर हमने इसको चैनल बनाया। तो उस चैनल में हमने दो, एक तो पहला फिल्टर लगा दिया कि कुछ मिट्टी जो है यहाँ रुक जाए, और फिर एक दूसरा फिल्टर और लगाया कि यहाँ मिट्टी रुक जाए, और फिर आखिर में एक लास्ट में एक कुआं बनाया कि वो पानी वापस चला जाए। तो जहां से बोरवेल से पानी आ रहा है, हमारा कोशिश है कि पानी वापस कम से कम कुछ परसेंटेज, इवन 75% पानी तो इसमें वापस चला जाए। ये एक छोटा सा बहुत सिंपल सा टेक्निक है जो हमने पहले यहाँ ऑलरेडी सूखे कुआं है और ये हमने क्रिएट किए। जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर में ये कपड़े धोने की पूरी की नालियां हैं, थैली बनी हुई है, ये पानी जा रहा है, और फिर हमने छोटा सा एक चैनल बना दिया और उसमें फर्स्ट एक उसमें लगा दिया कि भाई यहाँ एक फिल्टर लगाएंगे और आगे एक रिचार्ज वेल के पास में एक और फिल्टर लगा देंगे, और फिर लास्ट में कुएं में पानी जाएगा। ये प्राइवेट लैंड पे है और जो अभी पिक्चर्स हम देख रहे हैं तेजाराम जी, ये प्राइवेट है, और ये वाला कम्युनिटी लैंड पे है? ये वाला कम्युनिटी वाला है। हाँ जी, वो चौबंदी में है और ये कम्युनिटी वाले में है। बट दोनों ही काला डेरा में है। दोनों काला डेरा में, क्योंकि मीका, वहाँ दोनों सुरुचि, ये जो डायग्राम आपने अभी दिखाया तेजाराम जी, इसमें वाटर रिचार्ज का पानी कहाँ से आता है वो वाटर टैंक में? वाटर टैंक में, हाँ, क्योंकि ये तो आपने पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये डायग्राम, लेकिन नहीं आपने जो शुरुआत की है वाटर हार्वेस्टिंग के साथ, करेक्ट? हाँ, नहीं वो जो टैंक है ना, वाटर टैंक, वो हाँ, पानी आता है बोरवेल से, नीचे जमीन से पानी आता है उस टैंक में, फिर वहां से कपड़े धोने के प्रोसेस में जाता है वो पानी, जो जहाँ 3 कपड़े जी। धोने की जो केली बनाई बने वहां तक जो है वो बोरवेल का पानी है। अच्छा, तो ये अलग सिस्टम है और वाटर हार्वेस्टिंग वाला अलग सिस्टम है वो ये? अलग, वो ये रिचार्ज के लिए है। तो वाटर हार्वेस्टिंग में ये जो 3 आपको कलर दिख रहे हैं ना, यहाँ तक पानी बोरवेल से आता है, जी, और समझ यहाँ गई। कपड़े धोने के बाद जो पानी बेकार निकल जाता है वो फिर हम फर्स्ट फिल्टर फिल्टर और होता है। फिल्टर चैनल होते हुए वापस रिचार्ज वेल में जाता है। जी, और समझ वो जो हार्वेस्टिंग वाला स्ट्रक्चर है वो दूसरा है। वो हम जी, छत है, समझ गई। वो एक फोटो है क्या आपके पास सुरुचि जी? उसका एक फोटो नहीं, है कि छत। उसकी हाँ, फोटो नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट तो हाँ, दिस इज द वाटर। उसका सिर्फ ये हमने स्टोरेज टैंक बनाया और उसको छत से कनेक्ट किया हुआ है। जी जी जी, समझ गई, थैंक यू। उसको मीरा छत से एक्चुअली कनेक्ट 3 ना, सॉरी आप बोलिए। मैंने उसको रिचार्ज, जो स्टोरेज टैंक है उसको छत से कनेक्ट कर दिया, और फिर उसको ओवरफ्लो को हमने रिचार्ज वेल से कनेक्ट कर दिया, हाँ, बस ताकि अगर मैं पानी वही पूछ रही थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं ओवरफ्लो हाँ होता है, जैसे 1 लाख लीटर हमने हाँ, कैपेसिटी का बनाया। जी अगर पानी 1 लाख लीटर से ज्यादा आता है तो हाँ, वो ओवरफ्लो के थ्रू उसी रिचार्ज वेल में जाएगा जो हमने चौबूंदी में बनाया हुआ है। समझ गए, ओके। हम्म। कृष्णा कुमार जी, आप इसमें और जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि एक तो इन टर्म्स ऑफ नंबर आप कितना पानी सेव कर पा रहे हैं अपने यूनिट में, एक तो हमें ये बताइए, और इसके अलावा और क्या एडवांटेजेस आप देख रहे हैं जो आपके, क्योंकि ये फैसिलिटी के साथ दोनों सिस्टम्स जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ इकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं, मतलब सिर्फ वातावरण से जुड़ा हुआ बेनिफिट नहीं, लेकिन सोशल बेनिफिट क्या इसमें हो रहा है? कम्युनिटी, आप रीजन में रहते हैं, आपका परिवार है, इतने साल से आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आपको ये अपने में, आपको जरूर एक जिम्मेदारी लगी है जैसे आपने शेयर करा है, तो थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, क्या है कि पानी की समस्या तो आने वाली है, पर जो ये रिचार्ज का और ये हार्वेस्टिंग का जो लगाया है ना, जो जैसे तेजाराम जी ने हमें बताया कि हम पानी बारिश का पीते हैं उधर, और हम इतना पानी यूज करते हैं कि हम पर डे का
30,000 लीटर भी यूज करते हैं, 25,000 भी करते हैं, कभी 20,000 भी करते हैं। तो ये हमारे लिए वेस्ट हो जाता था पहले। आज हमारे पास रिचार्ज है। हम वो पानी, क्योंकि सारा नेचुरल पानी है, सारा मिट्टी से निकलता है, सारा नेचर से निकल रहा है, सब कुछ नेचुरल डाई सारा नेचर से आती है, तो हम वो पानी, हमारे जो पेड़ वगैरह हैं, तो हम मानते हैं कि हम 100% पानी काम में ले रहे हैं वहां का। हम बारिश का पानी भी 100% काम में ले रहे हैं और रिचार्ज का 100% भी काम में ले रहे हैं। बाकी बचेगा वो पानी जमीन में जाएगा। हम जमीन से कुछ लेते हैं तो जमीन को थोड़ा बहुत भी अगर दें तो काफी अच्छा लगता है। हम भी प्राउड फील करते हैं कि हम जमीन से लेके कुछ जमीन को दे रहे हैं। बाकी हमारे लिए सारा पानी वेस्ट था पहले। ये सारा बाहर जाता था, हमारे पास स्टोरेज नहीं था, पानी का स्टोरेज नहीं था, काम में क्या लेंगे कुछ भी पता नहीं है। तो एक जिम्मेदारी होती है कि बार बार में इसको सफाई करवाना बहुत जरूरी है, कि इसमें क्योंकि मिट्टी होती है तो सारा ये जो छोटे छोटे टैंक जो बनाए हैं वो भर जाते हैं, तो उसको पर हर हफ्ते या हर 15 दिन में उसको साफ करवाना पड़ता है, क्योंकि साफ नहीं करवाएंगे तो फिर आगे का वो पूरा मिट्टी से भर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जितना पानी है अगर आधा भी काम में लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की समस्या तो बनेगी बनेगी। हमने अभी नया बोरवेल करवाया है, वो हमारे पास 550 फीट पे पानी निकल के आया है, और वो भी प्रॉपर पानी नहीं है। तो पानी की समस्या के लिए तो ये बहुत हमारे लिए बहुत बेस्ट हुआ है काम, बहुत ही अच्छा है। और हम तो चाहते हैं कि और कम्युनिटी वाले अगर आके देखें और इसको काम में लें और इसको यूज में लें तो ये अच्छा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू कि पानी बचना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए भी है, आने वाले टाइम के लिए है, भविष्य के लिए भी है, सबके लिए है कि पानी बचना जरूरी है। सेव द वाटर। धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल, जल ही जीवन है। एंड मीता, हाउ मच वाटर इज बीइंग सेव्ड अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन? So saved is a term, I'm not sure we can use the term saved, but we are recharging water back into the earth. So annually it's about 7 to 7.5 million liters of water. मिलियन But I just, Hannah, I just want to back up a little. And before we started this, I didn't know technically what is a recharge well, how is it done. So I just want to give a very simple overview. बेसिकली पहले तेजाराम जी ने देखा कि लैंड का स्लोप किस तरफ से है और जो बारिश का पानी है, where will that rainwater, which way will it run? So once we've figured out the angle of the slope, we can make the recharge well in that area. The recharge well consists of, like he was saying, a 15-foot hole in the earth, and the sides are cemented and the bottom is not cemented. So because the bottom is not cemented, we are holding the water for a long time in that tank, and that water goes back into the earth. It's as simple as that. Working with him has been so wonderful because he has demystified it, made it absolutely simple. एकदम उसको बिल्कुल कोई बड़ी बात ना करके उसको एकदम सिंपल तरीके से उन्होंने हमें समझाया है। और जो बनवाया भी है वो लॉन्ग डिस्टेंस बनवाया है, उनको कम्युनिटी के साथ काम करने का भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। सारा काम बनवाने का ये कृष्ण कुमार जी और चौबुंदी के सब लोगों ने कराया कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स रियली simple. It's a hole in the ground. You hold the water for a long time and the water goes back into the earth. One thing that is also an advantage in this area is batti kafi jati hai. So when the electricity is not there, if you have water stored, you can use it for anything. You can use it for washing the fabric. You can use it for watering the trees. So even that, I mean, that helps because we don't know kitni der batti jayegi. 2 घंटे जा सकती है, 1 दिन जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। और तेजाराम जी, मुझे याद है जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने ये भी बताया था कि कैचमेंट एरिया को स्टडी करना, विच वाज माय पॉइंट, कि अगर एक नॉर्मल एक यूनिट में, एक वॉशिंग फैसिलिटी में अगर एक टिन की छत भी है
तो वो एक प्री रिक्विजिट है या एक बहुत, बिकॉज ये बहुत इजी है कि एक टीन की छत तो होती ही है एक शेड के लिए, तो वो एक कैचमेंट पॉइंट बन जाता है फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो क्योंकि जब एक हाँ, बोलिए। जैसे कि जब हम प्लान कर रहे हैं कि भाई अब हमें कितना कैपेसिटी का यहाँ बनाना है, तो जब निर्णय लेना होता है, फिर देखना है कि जब हमारे पास कितना कैचमेंट एरिया है और कितना बारिश आएगी। तो साल में हम सोचते हैं कि अगर 4-5 बार बारिश आती है, तो फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें इतना कैपेसिटी का वो टैंक बनाना है, तब हमें वो कैचमेंट एरिया और छत का वो पूरा नाप करना पड़ता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर उसको नहीं नापे तो या तो बहुत छोटा बन जाता है या बहुत बड़ा बन जाता है। तो थोड़ा लगभग 19-20 तो हम आइडिया करें उसके आसपास बने हो। बिल्कुल, एंड एक क्लस्टर लेवल पे यही हमें भी समझ आता है दैट लो की सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. It is not very difficult, as you said, it is not rocket science, and it is very much possible. And while we talk about possibilities, even financial possibilities is very important. While we understand this kind of solution, and what are the kind of the viability, the financial viability. So any of you can answer this question. हम कितनी लागत की बात कर रहे हैं in terms of financial requirement? What is the number that we are talking of? One, the water recharge well, and second, the rain water harvesting facility. तेजाराम जी, आप बताएंगे कितना खर्चा आया था अलग अलग सेक्शंस में? तेजाराम जी आप म्यूट पर हैं आपको। हाँ, जैसे हमने एवरेज देखे हैं, तो क्योंकि देखिए दोनों चीजें हैं कि ये हमें पता लग गया कि ये एक एक अच्छा सॉल्यूशन है हमारे लिए पानी को रिचार्ज करने का। टेक्निक हम लोगों को समझ में आ गई। अब परेशानी सिर्फ ये होती है कि उसको लोग प्रैक्टिस में नहीं ले रहे। जैसे हमारे चौमुद्दीन पे तो बहुत अच्छा मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन कम्युनिटी में वो अभी उतना मेंटेनेंस नहीं हो रहा, जबकि वो जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि इसका कितना फायदा है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम इस चीज को देखें कि हमें कम्युनिटी को थोड़ा मोबिलाइज करना है, थोड़ा लंबा करना है, तो शायद उसका कॉस्ट में फर्क पड़ता है। एक सीधा है कि हमें 1 लाख लीटर का टैंक बनाना है और उसमें सीमेंट इतना, पत्थर इतना, चूना, लेबर वगैरह वगैरह करके हम सिर्फ करेंगे, ये हमें बनाना है। तो उसका एक ऑन एन एवरेज करीब 5 या 6 रुपए पर लीटर का एक एक्सपेंडिचर आ जाता है। लेकिन जहां हमने देखा है अभी कि अमिता जी जानते हैं कि कम्युनिटी के साथ भी काफी वो काम स्टार्ट करने से पहले भी और उसके बाद भी वो काम करना होता है, तब ये थोड़ा सा कॉस्ट और बढ़ जाती है। और हम चाहते हैं कि ये जो उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से अलग होना चाहिए। उतना ही इम्पोर्टेंट ये कॉस्ट है जितना इम्पोर्टेंट हमारा कंस्ट्रक्शन का है। तब ये जाकर के 6-7 रुपए पर लीटर के हिसाब से ये कॉस्ट आ जाती है और तो डिपेंड आप ये करता है कह रहे हैं हाँ जो आप ये कह रहे हैं, जो टैंक है, जो हमने 1 लाख लीटर का टैंक बनाया था, वो हम्म 5 से 6 रुपए लीटर स्टोरेज टैंक। तो मतलब अगर हमने 1 लाख लीटर का बनाया तो हमारा खर्चा 5 से 6 लाख रुपए आया बिल्कुल बिल्कुल उस चीज बिल्कुल। में। और हाँ जो वाटर रिचार्ज वेल था, अगर मुझे याद है, तो वो 2.5 लाख था ना एक का? हाँ या एक क्या खर्चा था? आई एम फॉरगेटिंग, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं। हाँ वो 1-2.5 लाख के आसपास ही था वो। लेकिन एक का उसमें था या वो दोनों का था 2.5 लाख? एक का था, दोनों का ही था। लेकिन हाँ, लेकिन उसमें एक है मिता जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन में तो जैसे 2.5 लाख आपका, 2.5 लाख मीडिया जी का मिला के हमने वो 1 लाख लीटर का बना दिया। लेकिन उसमें ये है कि जैसे अभी हमें बार बार कि भाई कम्युनिटी वाले उसको यूज नहीं या ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो अभी ये उसमें कॉस्ट हमें जोड़नी पड़ेगी। और जी उसी का तब उसका, जैसे यहाँ तो चलो पिंटू को हमने फोन करके भी कहा तो उसने थोड़ा मन लगा के कर दिया, जाने की जरूरत नहीं रही। लेकिन जी अगर हम कोई और जगह देखते हैं या और कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वहां हमें कम्युनिटी के साथ ज्यादा काम करना पड़ेगा और वो कॉस्ट नेचुरली। ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तक जी कि पिंटू और बाकी टीम ने एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट कर दिया, इसलिए ये हम लोग का कॉस्ट इतना नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि अगर जैसे इतना बड़ी चौबूंदी में जो काम कर हो रहा है, उसको हम चाहेंगे कि कम्युनिटी में हो या और दूसरी जगह हो,
हो सकता है यहाँ तो, क्योंकि आपने आपने शायद कई सालों से दिमाग में था जी और आपने चौबंदी और बाकी लोगों को कन्विंस कर दिया कि यार ये बहुत जरूरी चीज है। और जब उनके उनके उनकी तरफ से पूरा एक तैयारी था कि जैसे मौका मिलेगा हम इस काम को करेंगे। लेकिन आपने 8-10 साल से एक दिमाग में था कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नए एरिया में जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके दिमाग में ये चीज बैठे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब जाके वो आपका जो ये जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका सही इम्पैक्ट होगा। तो कॉस्ट में बिल्कुल सही। वो पर चीज जी हाँ, ये कॉस्ट में वो मैं दोनों समझ रही हूँ बहुत आप। जरूरी है। जी जी आप कह रहे हैं एक सोशल कॉस्ट है, जो कि हम इस एरिया में इतने, मैं इस एरिया में इतने सालों से काम कर रही थी, पिंटू वहीं का है, कृष्ण कुमार जी या पिंटू वहीं के हैं, उन्होंने खूब मन लगा के किया, तो वो सोशल कॉस्ट हमारा कम रहा। और जो फाइनेंशियल बिल्कुल। कॉस्ट है मैं उसका पूछ रही हूँ, जो हमारे जो 2 रिचार्ज वेल हैं उनका रफली, अगर कोई, क्योंकि हाँ इस कॉल में और भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं शायद इसको अपनी एरिया में करने के लिए, हाँ, तो मेरे ख्याल से उसका वो क्या खर्चा, हमको कुछ आइडिया बताइए। आई एम नॉट हाँ श्योर वेदर 2.5 लाख एक रिचार्ज वेल का था या 2 का था। 2.5 लाख एक रिचार्ज वेल का है, जिसमें ये है हमारा चैनल भी है, जिसमें ये फिल्टर भी है। ये पूरा जी 2.5 लाख उसका एक का है। और ये हमने रफली 3 साल पहले किया था, सो रफली थोड़ा 3 खर्चा उस साल। हिसाब थोड़ा से सा बढ़ हाँ गया, बढ़ बढ़ गया जाएगा होगा। जो भी होगा। हाँ सो एवरी ईयर आई मीन आई एम होपिंग टू डू some sustainability, some ecological things. So this year we are going to work on, we have already started, we are going to work on solar recharge for electricity in the same place. तो वो एक next project है हमारा। अच्छा, so taking a step back, Meera is asking maintenance costs. Meera, the maintenance costs are only to clean the thing. So it can be zero maintenance if you are willing to put in the effort. वो जो channel है, हम लोग mud resist से printing करते हैं, तो वो mud resist जाली है, वो उस mud resist या दाबू को रोकता है. So that has to be cleaned. The cost is basically just that. So far और कोई खर्चे नहीं आए हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और तेजाराम जी लोग पूछ रहे हैं ये कितने साल चलेगा ये प्रोजेक्ट। मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं ये जो आई थिंक हमने देखिए बनाया फैसिलिटी है। जो ये हाँ फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कितने साल लास्ट कर सकता है, हाँ ये देखिए, सवाल है। इसमें दो चीज है कि जो हमने जैसे वो स्टोरेज टैंक बनाया है ना मीता जी, उसका तो जी एटलीस्ट 50-60 साल कुछ भी खराब नहीं होने वाला, क्योंकि उसका तो कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। नहीं है, हाँ। आराम से वो चलेगा, उसका 50-60 तक वो सर्विस देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ दिक्कत है हमारा रिचार्ज वेल की, और रिचार्ज वेल की भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि जो वो चैनल है, जिस चैनल से हमने उस कप वहां से लेके और कुएं तक, उस चैनल को सिर्फ साफ करने का है। वो अगर साफ होता रहता है तो ये रिचार्ज वेल का भी कम से कम 25-30 साल तक कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हमने जो उसमें मटेरियल लगाया जिस लेबरों को, क्योंकि हमने फुल प्लेस उसको ये नहीं सोचा कि आप मजदूर है, एक तरीके से उनको ऑनर करके ही बनाया, और उन्होंने जो काम किया कोई मजदूर के मैं हिसाब से बताऊं नहीं, बाकायदा मैं बताऊं पूरा उनके तेजाराम जी जब तक कितने कोई दिए कितने दिन में साफ करना चाहिए। हाँ हैं। बिल्कुल बताइए कृष्ण कुमार जी। इसमें 2 चैनल जो बने हुए हैं, जो 2 छोटे हौद बने हैं, अगर उनका प्रॉपरली हर हफ्ते में या हर 15 दिन में प्रॉपर सफाई हो जाए ना, तो आगे जो मेन टैंक जो बना हुआ है ना उसमें मिट्टी नहीं जाएगी। बिल्कुल तो वो मिट्टी से वो वो टैंक नहीं भरना चाहिए। बाकी जो ये प्रॉपर साफ होते रहे ना टाइम पे, अगर सप्ताह में एक बार करे तो और भी अच्छी बात है, नहीं 15 दिन में एक बार साफ कर दे तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल आगे फिर पानी पानी जाएगा तो पूरा पानी काम में आ जाएगा, पूरा रिचार्ज आएगा। मिट्टी नहीं भरेगी तो पूरा अच्छी तरह से रिचार्ज होगा, पूरा पानी काम में आता है। बिल्कुल। नहीं तो क्या करना पड़ेगा कि 5-10 साल के बाद फिर उस कुएं में से मिट्टी निकालनी पड़ेगी। 5-10 तो साल नहीं अच्छा, तेजाराम जी, 1 साल में कम्युनिटी का हाँ, पूरा भर चुका है हमारा। है ना। वही मैं उसी बात पे आ रही थी। यू नो हम्म, जो द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैटर इज आल्सो, यू नो, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, की कम्युनिटी हमारे साथ होनी चाहिए।
सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि जो कम्युनिटी का वाटर रिचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूटिलाइजेशन में अभी नहीं है, वो ऑपरेशन में नहीं है, फॉर दिस रीजन दैट इट इज फुल ऑफ सेडिमेंट्स एंड मड। कृष्ण जी, कुमार जी, यही बात है ना? यही हाँ बात जी। है। और जैसे पूरा हमारा इंडिगो का वैट में भी दाबू भर जाता है और हम 6 महीने या 1 साल में उसको साफ करते पूरा हैं। मीनाक्षी साफ अगेन करके इज आस्किंग कितने लोग चाहिए साफ करने के लिए। तो कृष्ण कुमार जी, कितने लोग चाहिए इसको साफ करने के लिए हर हफ्ते या 15 दिन? 2 लोग चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी भर जाती है उसको बाहर निकाल के साइड में रखने के लिए। बाकी वो मिट्टी भी अगर काम में लेना चाहो तो लैंड पे डाल सकते हैं, वो भी मिट्टी ऑर्गेनिक है। और 2 लोग आराम से आधा दिन में साफ कर सकते हैं, आधा ज्यादा दिन टाइम में नहीं नहीं, लग आधा दिन लगता है। आ, आधा दिन। वो एक मेन टैंक है, उसमें नाला नहीं होता है, तो उसमें आधा दिन चाहिए। वो पूरा मिट्टी निकालना पड़ता है ना, दोनों होद में से पूरा मिट्टी निकालना पड़ता है। अगर 15 दिन में करेंगे तो 2 घंटे का काम है, अगर महीने में करेंगे तो पूरा आधा दिन लगेगा। ठीक है। और तेजाराम जी, ये मीनाक्षी जी पूछ रही हैं, ये सिर्फ नेचुरल डाई की एरिया में कर सकते हैं या जो लोग केमिकल डाइंग कर रहे हैं वहां भी हो सकता है ये? देखो, हम ये स्ट्रक्चर तो कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि नेचुरल डाई वाला, जैसे हम नेचुरल डाई वाले को हम प्लांटेशन में सब्जी के लिए, पौधों के लिए काम काम में ले लेते हैं, लेकिन वो जो केमिकल वाला उसको इस यूज में नहीं लेंगे, है ना। तो ये एक परेशानी है। बाकी ये स्ट्रक्चर तो हम रिचार्ज तो कहीं भी कर सकते हैं ना। ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो हो ही सकता है, लेकिन ये जो बिल्कुल फिल्टरेशन बिल्कुल। सिस्टम है तेजाराम जी, ये क्या सिंथेटिक डाइस पे एप्लीकेबल होगा? ये किस तरह से फंक्शन करेगा? या हमें फिल्टरेशन वॉल में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत होगी अगर ये सिंथेटिक डाइस के लिए यूज होगा? ये मेरा भी सवाल था, क्योंकि नहीं, मेरे कोशिश ख्याल ये से है। बताइए। उसका उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो हमारा नहीं, मटेरियल जो हम लगा रहे हैं ना, उसमें इसका ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि एक अलग हमें स्ट्रक्चर या अलग तरीके का मॉडल बनाना पड़ेगा। नहीं, मॉडल वो तो ये एक। पूछ रहे हैं अगर हम केमिकल डाई कर रहे हैं तो कोई और तरीका है जिससे हम फिल्ट्रेशन बेहतर कर दें, क्योंकि वो हम धरती में नहीं डालना चाहते। आप कोई ऐसा तरीका जानते हैं कि केमिकल डाई वालों के लिए एप्लीकेबल हो? नहीं, लेकिन वो मेहता जी, वो मुझे नहीं मालूम कि हम केमिकल फिल्ट्रेशन को हम कैसे अलग करें, वो नहीं कैसे मालूम। करेंगे? ये तो ठीक है, अभी हम्म। अपना जो जो मॉडल है उससे तो पूरा का पूरा पानी ही रिचार्ज होगा। ठीक है। और लेकिन दिस इज व्हाट किसी वी ने अभी अंडरस्टैंड। नोट, yes, Suruchi, I think you put the note. So the cleaning is 2 hours if it's done once a week, and if it's done once a month, then it's half a day. So that's अच्छा, maybe और four एक एक hours. मिता जी, मैं एक पिंटू जी से एक बात पूछ रहा हूँ कि ये बोलिए। कम्युनिटी वाला काम क्यों नहीं कर रहा है पिंटू जी? ये कम्युनिटी वाले ध्यान नहीं देते हैं, इसकी सफाई नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, और कम्युनिटी में है कौन? आप भी तो कम्युनिटी में हो भाई। कम्युनिटी आप में हम उस कम्युनिटी में जो कब हमने हमारा जो बताया ना, चौबूंदी के कम से कम 5-6 लोग उस कम्युनिटी में है ना। कम्युनिटी में है, पर मतलब हम वो जो जा, काम कर रहे हैं ना, जो जो वो डायर है ना, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो ऑपरेशन है उसको संभालने वाले लोग, उसमें तो आप ही है। तो चौबुंदी वाला जब अच्छे से हो रहा है, तो वहां क्यों नहीं करवा पा रहे हो? कम से कम आप 5-6 लोग हो उस कम्युनिटी में, उसके लिए। मैंने सबकी विजिट करवाई है, वहां पे ले जाके सबको बोल के दिखाया कि ऐसे काम में ले सकते हैं। आप पूरे बाउंड्री पे पेड़ लगा दो, सारा एक मोटर लगा दो इसके अंदर, सारा पानी काम में आ जाएगा। ज्यादा साफ करना नहीं पड़ेगा, हफ्ते में अगर 2 घंटे भी दे दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो पर ये 2 घंटे कम्युनिटी, को, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 घंटे के लिए पहल कौन करेगी? आपने कभी पहल किया? आप 4-5 लोग थे, आपने कभी पहल किया कि देखो इस महीने के हम 2 घंटे मैं देता हूँ? जैसे वहां पे 5-6 कम्युनिटी में 5-6 लोग यूज में ले रहे हैं, तो नहीं, उनको पहले वो मैं आगे। मान रहा हूँ। देखिए, वो तो मैं मान रहा हूँ, कई समय से सुन रहा हूँ कि वो यूज में ले रहे हैं उन्हें। लेकिन जैसे सुरेंद्र जी है, आप है, आपके भाई साहब है, और वो दूसरे वाले लोग हैं, मैं उनसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपको ये पहल करके महीने में एक बार कि चलो हमने ये साफ कर दिया, जैसे आप वहां चौबुंदी में करते हैं ना, एक एग्जाम्पल आपको सेट करना चाहिए कि देखो हमने कर दिया भैया, अगली बार ये
दूसरा बात मैंने ये भी कहा था कि भैया ये कंडीशन होगी कि जो कम्युनिटी में इसको काम में लेगा, हम उसी आदमी को ये यहाँ अलाउ करेंगे जो आदमी इस सब का मेंटेनेंस करेगा। कुछ तो हमें मेंटेनेंस करेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा पिंटू। ये हमने उसी के लिए नहीं तो बात होगा। की। हाँ, मैं एक चीज बोलूं, मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि वो किसी एक की जमीन नहीं है और एक से ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो सब बोलता है मैं क्यों करूं, उसका ज्यादा प्रिंटिंग है, उसका ज्यादा वॉशिंग है, वो करे वो करे, वो भी नहीं कर रहा है। और एक्चुअली कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि वो ये, इसका भी बहुत सिंपल सोल्यूशन है। इसीलिए अगर वो अगर 4 लोग कर रहे हैं तो एक हफ्ता मैं करूं, एक हफ्ता आप करो, एक हफ्ता तीसरा करे, एक हफ्ता चौथा करे, अगर इसका रूल बना दें। बट definite, शायद उन लोगों को इसमें रुचि ही नहीं है, क्योंकि जैसे पिंटू ले जाके बात किए हैं, मैं बहुत दफे बात करी हूँ, प्यार से गुस्से से हर तरीके से कोशिश की है, वो नहीं, नहीं उसको आगे देखिए ले जाने में इंटरेस्टेड ही इसलिए नहीं है। इस मॉडल ये भी में इनके जो बायर्स भी हैं उनको भी बोलना कि हम वापस रिचार्ज कर रहे हैं धरती में, उन्हीं को बेनिफिट होगा, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको बेनिफिट होगा फिजिकली। बट आई थिंक उनको इतना रोजमर्रा की जिंदगी में ही इतना बिजी है कि उनको इतना इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। और मीता, वही आप हमारा चैलेंज बताइए। है मिता जी, इस प्रोजेक्ट में हाँ हमारा वही बिल्कुल, सुरुचि जी, वही चैलेंज है हमारा कि क्योंकि इंडिविजुअल में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल आदमी नहीं है, को हाँ। जब भी सपोर्ट करो तो चल जाएगा अच्छा सा। चैलेंज हमारा ये है कि हम कम्युनिटी में कैसे करें, और वही हम्म। हमारे लिए है। और इसको हमें क्या शायद आप रोटेशन एक नहीं बांध सकते हैं? ऐसी कोशिश हाँ, करी गई है कि एक रोटेशन पे चले, टर्न्स लेके, जैसे मीनाक्षी जी सब भी चैट बॉक्स में सजेशन कह दिया, रही हाँ। हैं। हाँ, इवन तो आई, इस दैट्स व्हाट तरह आई से वाज हो, सेइंग, या एक एक आप बहुत टर्न बाय अच्छी टर्न करें। करे। और तेजाराम जी बहुत अच्छी आप बात कर रहे थे कि हमें इसमें एक गवर्नेंस कॉस्ट भी जोड़नी चाहिए अगर हम किसी प्रोजेक्ट को फंड करने की सोच रहे हैं, या जो सोशल कॉस्ट जिसको आप कह रहे थे, कि ये एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू हम एक रेगुलर प्रोग्राम चला सकते हैं। जो भी तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो प्रोजेक्ट चला था ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, राइट मीता जी? आपके बीच में, मंथन कोटरी के बीच में, चौबंदी स्टूडियो, और देन जो आर्टिजान्स थे काला डेरा एंड के, बीबीसीपी, आल्सो बीबीसीपी बीबीसीपी, फाउंडेशन। हाँ जी, हाँ जी। सब तो जब सबके बीच ऐसा में ये कोई, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। हाँ, सो ये बिकॉज अब हम ईएसजी की बात करते हैं तो ये गवर्नेंस जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड इट्स वेरी जी। नाइस एंड इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी जो आप लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि एक्चुअल कोई भी सोशल इम्पैक्ट वर्क करने के लिए दिस इज द रियलिटी, यू नो, दिस इज द रियल ऑब्स्टिकल, दिस इज द हैसल, ये है। तो आई थिंक, यू नो, अगर इस तरह की, कृष्ण कुमार जी, अगर आप इस तरह की बातचीत एक बार कोशिश करके देखिए, एक नहीं 2-3 बार कोशिश करके देखिए, कि जो भी वहाँ पंचायत है या यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन है, उसके थ्रू अगर, मतलब ये हमारा बस सुझाव है, हम सही गलत तो नहीं सुरुचि हो जी, सकते हैं। इन्होंने काफी कोशिश की है। आई मीन, आई आप भी मैं बोलिएगा कृष्ण मैं कुमार जी, पर एक मिनट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस जो कम्युनिटी लैंड है, हमने यही जो हमने वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक बनाया है चौबुंदी के लैंड पे, जो 1 लाख लीटर का, हमने इनको भी ऑफर किया दैट वी विल मेक अ टैंक ऑन देयर लैंड, जो कि फ्री रहेगा उनके लिए। उनके यहाँ शादियां होती हैं, उनके यहाँ त्योहार है, मंदिर है, तो पानी विल डेफिनेटली बी ऑफ यूज। पर वो नहीं इंटरेस्टेड थे। सो कम्युनिटी के साथ एंगेज करना, जैसे तेजाराम जी कह रहे हैं, वो उसमें किसी को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है और टाइम देना है। एक कृष्ण कुमार जी, आप बोले उससे पहले कोई पूछ रहा है, मीनाक्षी जी या मीरा, कि मीरा पूछ आपने रही कोई थी। ऐसा देखा है प्रोजेक्ट तेजाराम जी जहाँ पे कम्युनिटी का प्रोजेक्ट हो और वो सक्सेसफुल रहा हो और लोग उसमें ध्यान दे रहे हैं सफाई में? क्योंकि सफाई में भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर हफ्ते में बड़ा, 2 घंटा चाहिए तो इतना भी बड़ी बात नहीं है ना पिंटू? हाँ इतनी बड़ी बात नहीं है, पर ध्यान देना जरूरी है ना। मेन तो हम्म। ध्यान देना जरूरी है। सफाई के लिए कौन आगे आएगा कि हम्म। 2 घंटे जाके अपन एक बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे, 3 बार कर देंगे, फिर बाद में तो उनको कंटिन्यूअस चालू करना ही पड़ेगा। नहीं, हम्म। तो उसके लिए तेजाराम जी, कोई देखो, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है क्या जो हाँ आपने, इसमें तो कम्युनिटी बहुत रन है प्रोजेक्ट देखो, है जो आपने देखा हो? इसमें बहुत सारा है। जैसे मैंने बता रहा हूँ, एक
तालाब का आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिसने सिर्फ महिलाओं ने एक इनिशिएटिव लिया था, महिलाओं मीटिंग करके कि हमारे एक तालाब बन गया, मीठा पानी है, दूसरे बोरवेल करके लोग अपने खेतों में तो सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन वो पानी हमारे घरों तक क्यों नहीं आता। तो 6 महीने तक लगातार महिलाओं ने मीटिंग किया, पंचायत में किया, और फिर पंचायत ने कम से कम 25 लाख रुपए दे करके महिलाओं को कहा कि ठीक है, आप ये पानी ले आए। पंचायत ने बोरवेल किया, वो पानी और महिलाओं ने कहा कि हमारे आप कम्युनिटी के वहां तक लाके छोड़ दो, बाकी इंडिविजुअल घरों में हम ले जाएंगे। और आज वो पूरा कम्युनिटी के लेवल पे है, लेकिन उनको पूरा बैठ के तय करके कि ये हम पानी यूज करेंगे तो इसका हम इतना हर महीने का पेमेंट करेंगे, और वो पेमेंट एक एक ग्रुप के पास जाएगा, इसमें ये लोग होंगे, और उसको देखने के लिए, पाइपलाइन को पूरा संभालने के लिए, देखने के लिए जो बंदा होगा, उसको इसी कंट्रीब्यूशन से हम पेमेंट करेंगे। तो वहां जब हमने ये भी, उस दिन जब हम बात किया था वहाँ कम्युनिटी लैंड के, तब ये भी सोचा था कि यहाँ अगली बार जब हम किसी को देंगे यहाँ काम करने के लिए, उनको साफ है कि भाई आपको इतना पैसा कम से कम आप नहीं कर सकते हो, तो इतना पैसा कम से कम इसको साफ करने के लिए हम मजदूरी देके इसको हर महीने या हर 15 दिन में एक बार साफ कराएंगे। तो ये सिस्टम है और लोग इसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। लेकिन जब उनको पता लग जाए कि ये हमारे मतलब का है, और अब तो पता तो लग ही रहा है, क्योंकि यहाँ चौबुंदी में वो देख रहे हैं कि कितना अच्छा है। तो मिताजी, मेरे ख्याल से एक ही हमें 1 साल के लिए थोड़ा सा कहीं से आप थोड़ा सा पैसा कबाड़ लो, तो हमारा ट्रेवल का, तो हम लगातार उस कम्युनिटी में मीटिंग करके ये एक सिस्टम बिठाएंगे, पिंटू जी और हम लोग मिल करके एक तय करेंगे तरीका कि भाई अब यही करना है, क्योंकि अपन जरूर, ने ये उस दिन हम अभी मीटिंग बात किया करते हैं, जरूर। कि हाँ ठीक। तो bringing some structure to the governance process as well, कि कोई structure हो and एक economic incentivization होनी चाहिए, या एक working structure होना चाहिए, and उसके हिसाब से community run project सक्सेसफुल हो सकता है, मैनेज हो सकता है। ये हमारा, मेरे को ये समझ आ रहा है हमारी जो अभी कॉन्वर्जेशन हुई है लास्ट 5 मिनट्स में। मीनाक्षी जी एक और सजेशन दे रही हैं, आप विमेन को इस प्रोजेक्ट के आगे खड़ा कर दीजिए, वो अगर मैनेज करे, वो गवर्न करे, तो मे बी ये एक सोल्यूशन हो सकता है, एंड वी हैव ऑल हार्ट्स फॉर दैट। ये मीरा जी, ये भी मेरा भी एक सवाल था आगे जाके, कि जब मैं आपसे बेनिफिट्स की बात कर रही थी कृष्ण कुमार जी, मीरा जी भी यही पूछ रही हैं, क्या ये जो कॉन्शियस प्रैक्टिसेस आप अपने बिजनेस में लेके आए हैं, क्या इससे आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट भी हुआ है, कि कोई ग्राहक आपके पास आए हैं क्योंकि आपका जो सिस्टम है थोड़ा ज्यादा कंप्लायंट है दूसरों से, या आप थोड़ा सस्टेनेबली अपने बिजनेस को चला रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन में, इससे आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ है बिजनेस में? देखो, इकोनॉमिकली तो होता है, जैसे हमारे पास फॉरेनर्स वगैरह काफी आते हैं, तो वो पूरा सेटअप देखते हैं तो बड़ा हैप्पी फील करते हैं कि यार इस चौबंदी यूनिट में ये सब चीजें हैं, कि पूरा पानी को भी बचा रहे हैं, पूरा ये पानी जो काम में आ रहा है उसको सबको काम में, सारा काम में ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बिजनेस बढ़ता भी है उससे, और थोड़ा फोटो वगैरह वो लेके जाते हैं तो वो आगे मीटिंग वगैरह में दिखाते भी हैं, तो फायदा तो है। और देखो, उसमें एक बात जोड़ रहा हूँ मैं पिंटू जी, और क्योंकि शायद पिंटू जी ने इसको अपना फायदा लेने के उस हिसाब से प्रचार भी नहीं किया है। नहीं तो ये बिल्कुल सही बात है, नहीं तो ये अगर ये सही है कि इस जो पिंटू जी ने वहां जो एग्जाम्पल जो सेट किया है और जो विजुअली है, वो मेरे ख्याल से सब लोगों की जरूरत है, और जितने भी लोग जो हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, क्राफ्ट में काम करते हैं, और क्लाइमेट में जो काम करते हैं, वो लोग वो इसको बहुत चाहते हैं कि ये मॉडल हो, और हम उसी आर्टिजन के साथ काम करें, उन्हीं लोगों के साथ काम करें, उन्हीं कम्युनिटी के साथ काम करें, जो इस तरीके का क्लाइमेट को बचाने का एक छोटा ही इनिशिएटिव हो, लेकिन वो विजुअली लोगों के साथ हो। और ये पिंटू को आज नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये पिंटू को बहुत मतलब लोग फायदा मिलेगा। सम्मान करने वाले। फायदा, हाँ बिल्कुल सही है पिंटू, फायदा तो पता नहीं आपका होगा नहीं होगा, लेकिन प्रकृति का नहीं, तो फायदा हो ही रहा है। तेजाराम जी, मेरे तो काफी बेनिफिट है, मेरे को फ्रेश पानी पेड़ों में नहीं देना पड़ रहा है, 300-400 पेड़ हैं तो इसी पानी की वजह से चल रहे हैं मेरे।
हाँ और तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि एक्चुअली ये हमारी भी कमी रही है, हमने ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं किया, वैसे नहीं। तो हम हाँ बोर्ड तक नहीं, पर ये हमारी कमी है, हमने एक बोर्ड तक नहीं लगाया है। तो आई नहीं वुड लगाया। लाइक कि हम वो लगाएं, उधर हम लिखें कि कितना हमारा क्या पानी पानी वापस जा रहा है धरती में, हाँ कि जो विजिट करे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी एक बोर्ड होना चाहिए वहां पे, और वो हम, वैसे नहीं। इट्स सिंपल इनफ, वो भी हम लोग इस पे काम करते हैं आगे। सही है। जैसे नेताजी हम ये काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट का, तो उसके सामने छोटा सा है कि इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई चाइल्ड लेबर का काम नहीं है। तो बहुत लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ चाइल्ड लेबर नहीं काम करे। तो वैसे ही हम ये जी। कर रहे हैं कि हम इन एक कुदरत को बचा के फिर हम ये काम कर रहे हैं। हम पैसा यस। कमा रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन कुदरत को हम बचा रहे हैं। जैसे ही ये आएगा, लोग दौड़ के आएंगे कि अच्छा ठीक है, काम आप भी करें, वो भी करें, लेकिन आप एक अलग क्या कर रहे हैं, जो अलग ये दिख ही रहा है। जी। बिल्कुल Because जी। Meeta, you took a voluntary step, to initiate a low impact business model. And but यस। yeah, this is the question that, what kind of shift of consciousness is needed, in small, यस। medium-sized businesses who are not basically looking for much help from the third party also I यस। think in collaborative spirit or optimizing यस। collective intelligence, solutions, low-key solutions like these are, possible to proactively manage your waste, water, or emissions, to Yes, create, and absolutely. And as a very small social enterprise, there are so many things that one is always overwhelmed, that you end up doing only what is absolutely necessary, because we are working with people, we are trying to work in an ethical manner, we are trying to take people along as family. So you start one thing, then someone else falls ill, you're running for that, you are working on, like I'm saying now, I'm working on the next project, which is solar. It seems very simple sitting in a city, but in a village to get any work done, it is torture. It takes so long, so long, so long. I mean, just getting a simple electric fault repair fixed can take you a week, because and it's there are not enough people who are interested in doing this. Everything takes 5 times the time that it takes in a city, so it's just exhausting. And this is when I'm sitting in Delhi, but imagine the people who are sitting there and who are getting the work done. It's even more exhausting. So at some level I understand why the community people are not putting in that effort, because they are working very hard, they are battling all kinds of issues, from electricity to there's so many physical things that they need to do that they really don't have the energy. It's just everybody's so overworked. Yeah, no, and I'm very glad, Everybody our works so discussion has hard. taken this shape because, Yes. at CD, our intention is to, really bring the ground stories up. And Yes. there is a possibility also emulate this model. जैसे मेरी last week मैं सांगानेर में थी और वहाँ एक मैं साइट असेसमेंट करके आई हूँ सोच के, और तेजा राम जी से भी कंटिन्यूअसली बात हो रही है कि वहां पे अगर हम एक प्रोटोटाइप, एक पायलट क्रिएट कर पाए. बट यू आर राइट, आई एम ऑल्सो जी. स्टक एट द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पॉइंट. Yes, So that is just the in short, crux, like he pointed out. He really knows that. And I mean, I would like to thank CD publicly. It has helped us with a lot of funding for artisans who have been unwell during COVID, post-COVID. I mean, we've received help from that, from CD, with people who I've worked with over many, many years. And thank you for that. और सूर्य जी thank एक थोड़ी सी बात मैं और भी कर रहा हूँ। जैसे यहाँ चौबुंदी में या कम्युनिटी में जो भी स्ट्रक्चर बना, उसमें क्योंकि मित्रा जी ने ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल. सिर्फ वो कम्युनिटी केवल वो पर्याप्त नहीं होगी जो सिर्फ कम्युनिटी इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन उस कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले लोग भी ऐसा सोचें जो मिता जी ने सोचा कि नहीं ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि फिर उसमें सपोर्ट किया पिंटू ने कि नहीं नहीं बिल्कुल हम साथ खड़े हैं, ऐसा होना चाहिए, तो वो एक पहल होगी कि इधर
कम्युनिटी का भी और इधर उनको सपोर्ट करने वाले लोग, दोनों एक तरीके से सोचे। अब किसी को जी फायदा हो नहीं हो, लेकिन कम से कम मीता जी, पिंटू जी, इनको तो थोड़ा एक अच्छा फील हो रहा है कि यार हमने तो कुछ तो किया है। उसका हाँ असर जी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने किया। तो मेरे ख्याल से हम जहां भी जाएं, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होने चाहिए जिनको फील हो कि नहीं कुछ तो होना चाहिए, तब वो जाके बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। अब एक इस जी पॉइंट पे हम थोड़े से क्वेश्चन, सजेशंस, फीडबैक लेना चाहेंगे, जी और ईशा प्रिया सिंह जी हमारे बीच हैं। इनका एक सवाल, कोई सवाल है या कोई फीडबैक है? ईशा प्रिया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी तीनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका, कि उन्होंने इतने अच्छे से जो ये प्रोजेक्ट उन्होंने किया है इसके बारे में हम सबको बताया। कम्युनिटी की बात हम लोग कर रहे हैं और किस तरह का वहां पर कैसी चुनौती आती है, इसकी बात हुई तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार हम लोग जो शहरी लोग हैं, जो थोड़ा क्लाइमेट की समस्या को या पानी की समस्या को जिस तरह से समझते हैं, वो कई बार हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं, समय है, जो प्रिविलेज है, उसकी वजह से आता है। और गांव देहातों में शायद इतना वक्त या इतना आराम नहीं है कि इन चीजों को तवज्जो दी जा सके या इसको प्राथमिकता दी जा सके। तो वहां लोगों को शायद समझाने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ता है, अगर हम इस चीज में आस्था को लेकर आए, कि हम एक बार लोगों से इस बारे में बात करें कि देखिए, जल जो है वो एक तरह से उनको देवता ही माना गया है। पानी को एक देवता के रूप में हम लोग देखते हैं, वरुण देव के रूप में देखते हैं। तो आप अगर, जैसे हम लोग दिवाली पे घर की सफाई करते हैं इसलिए कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, तो वरुण देवता जो है उनकी बेटी माना गया है लक्ष्मी को, क्योंकि समुद्र से निकली हैं। तो अगर आप पानी बचाएंगे और आप उसमें मदद करेंगे और आप अपने टैंक्स को साफ रखेंगे, तो एक तरह से आपके पास लक्ष्मी आएंगी, समृद्धि आएंगी। मैं जी ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऐसा मीठापुर में जो वेल कंजर्वेशन किया गया है, जो वेल मैमल मछली होती है, उसको लेकर इस तरह की चीज की गई कि वहां जब टाटा इन्वॉल्व हुए, क्योंकि वहां के जो मछुआरे थे वो हम्म वेल्स जो माइग्रेट करके आ रही थी उनका शिकार कर रहे थे। तो उस चीज को रोकने के लिए इसी तरह की चीजों को, इसी तरह की बातों को लेकर उनके पास जाया गया, और वहां के लोगों को इस तरह से जब समझाया गया कि ये एक तरह से आपकी बेटी है, वाली शब्द का इस्तेमाल किया गया, वेल की जगह वाली कहा गया, हम्म, और कि ये आपकी प्यारी है, वाली है, इट्स योर डियर वन, इट्स लाइक योर डॉटर। वो वहां से आती है एक तरह से माइग्रेट करके, और द वेल्स आर एक्चुअली प्रेग्नेंट व्हेन दे माइग्रेट, and these people हम्म, would kill the whales at a time when they are pregnant, so the population was dwindling drastically। तो इस तरह से जब कहा गया कि अगर कोई बेटी अपने मायके आती है, जब वो गर्भवती है और बच्चा अपने मायके में आकर वो जन्मना चाहती है, और आप उसको उसकी जान ले लेंगे, तो कैसा रहेगा। तो आप जो वेल के साथ कर रहे हैं वही चीज है एक तरह से। तो वहां के लोगों को समझ में आया और उन्होंने वेल्स को बचाना शुरू कर दिया। तो अगर हम इस तरह से लोगों से बात करें जो उनको समझ में आए, हम अपनी जो क्लाइमेट की नॉलेज है उसको लेके जाएंगे, तो शायद बात उन तक नहीं पहुंचेगी। उन तक बात पहुंचाने के तरीकों को बहुत बदलना पड़ेगा। तो बस वही मुझे लगा, पता नहीं ये कितना कामयाब होगा नहीं होगा, पर कहीं पर ये चीज कामयाब रही तो लगा शायद अगर सबके साथ बांटा जाए तो उसमें से और भी बहुत सारे आइडियाज निकल सकते हैं, सोच निकल सकती हैं, और कुछ ना कुछ हो सकता है। जी, बस यही मुझे सही कहना है। Yeah, talking जी in the थैंक यू। थैंक यू। language that they understand. पिंटू, आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ सकता है अगर हम इसको इस तरह से बात करें इस पानी के बारे में? मेरे को लगता तो नहीं है, पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ सारे मानते हैं भगवान को, सबको मानते हैं, पर ट्राई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ट्राई करने में कोई ज्यादा अपना कुछ जाएगा भी नहीं, तो एक बार ट्राई करते हैं। जी, अब अच्छी देखिए, बात जब भी, कोई भी पूजा होती है तो उसमें कलश रखा जाता है ना, तो कलश क्यों रखते हैं? उसमें जल होता है, वरुण बिल्कुल देव का अच्छी रूप है। बात, अच्छी बात बताइए आपने। हम ट्राई करते हैं एक बार ये जी सॉल्यूशन भी। आप, थैंक यू, आपका सजेशन अच्छा है। फिर भी मैं जी आप ट्राई करते हैं, कल से ही ट्राई करता हूँ ये चीज।
बिल्कुल, और हम तो आपके टच में हैं ही, तो हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं मे बी ही हम आपसे एक पहले बड़ा पूछूंगी। एक इवेंट कर सकते हैं चौबुंदी के उधर ही, जिसमें हम आई डोंट नो, हम वैसे भी सेलिब्रेशन तो करते ही हैं, तो छिपो को हाँ, बुला के ये पानी को इस नजरिए से उसके बारे में बात करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एनी हाँ, अदर, या प्लीज गो अहेड। बहुत काफी अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। आई एम अन्विता, आई एम फ्रॉम अमितांश फाउंडेशन। हम ESG EPR इन सब में एक्टिवली हम काम कर रहे हैं। एंड जैसे आप बोल किसमें रहे आप हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आया। ESG EPR, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो भी सस्टेनेबिलिटी जीरो वेस्ट इनिशिएटिव्स बेसिकली उसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी गवर्नेंस की आपने बात किया है एंड वी हैव अ सजेशन। जैसे आप बोल रहे हैं आपके पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं या डाइंग कर रहे हैं, उनकी आप एक कमिटी बना सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ कितना पानी, एक वाटर मीटर भी लगाया जा सकता है जिससे आपको पता चले कितना वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जा रहा है, कितना रिचार्ज में जा रहा है एंड कितना बोरवेल से निकल रहा है। सो वी कैन क्रिएट अ लूप जिससे हमें एक आइडिया पता चले, और जो भी कमेटी के मेंबर्स होंगे उनको तो पता ही चलता है कि कितना क्वांटिटीज में वाटर उन्होंने यूज किया। सो दिस दैट बिकम्स देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ हमें इस चीज को क्लीन भी करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप बड़े इंडस्ट्रीज हो गए या कहीं भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें आप ये दिखा सकते हैं कि वी रिचार्ज्ड दिस मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, या आपकी ऑडिटिंग या जो भी सर्टिफिकेशन होगा ये आपकी प्लस पॉइंट्स में आएगा। जी जरूर। हाँ, नो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंड तो ये कृष्ण कुमार जी, तेजाराम जी, ये बड़े बिजनेसेस ऐसा करते हैं कि एक नंबर से, इम्पैक्ट नंबर से, बेसिकली कैलकुलेटिंग इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर। कौन? क्योंकि जैसे अगर हम रिलीजियस भाषा की बात कर रहे हैं कि अगर ये कम्युनिटी को समझ आए, तो ये जो नंबर्स की भाषा होती है, इम्पैक्ट की भाषा होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, बायर्स को समझ आती है। तो एब्सोल्युटली देखो, आई एग्री। एंड बट वही अपार्ट है। फ्रॉम दैट आई थिंक देयर शुड बी आपकी इनिशिएटिव इतनी अच्छी है, आपको और लोगों को ये सारी चीजें बता के दिखा के और लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। एंड जी हम यहाँ एक हेलो किसान एक न्यूज़पेपर है, सो मिस्टर मुकेश गुप्ता वो हमें मेंटोरिंग भी करते हैं। सो इफ पॉसिबल प्लीज डू शेयर द डिटेल्स। हम अपने पेपर में ये सारी चीजें जो भी ऐसे नए इनिशिएटिव्स है, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स है, हम उसको पब्लिसाइज करने में भी हेल्प करते हैं। Thank you so much, Dr. Sudeshna. This थैंक is really valuable. And could you also in the chat box mention your details, maybe your email ID and the foundation Sure. that you represent, and we'll definitely be in touch and inform you about our larger series as well. Sure. Jacob had a point in the chat, and Jacob, would you like to share more insights about Anupam Mishra ji? So we can help that, we can understand that better. No, it's just that Anupam Mishra ji worked a lot in Rajasthan, mainly Yes. in rainwater harvesting structures and underground structures, which required a lot of involvement from communities in the form of Shramdan. So that model might be interesting to look at, especially because these were things that took a long time. The results were not immediate. Like say, if you want to raise the groundwater level, sometimes it takes a decade before you start seeing the results. Yes. Much like how this precipitous fall is also because of, decades of mismanagement. I quite agree with, I'm sorry, this thing about using beliefs and using that angle as well. These are like children. Children don't grow up in a year or two. They take decades to get there. So, yeah. I was just looking at
not an expert, but Anupam Mishra ji's work is quite remarkable in Rajasthan. And since these projects are based there, there must be people who worked with him and probably have some experience of how he did this community mobilization. You know, what were the methods that he used? Because I believe he was quite successful. Yes, that's a good idea. And Tejaramji is also on, you know, like he's talking about how he can do some more visits and we can बिल्कुल try बिल्कुल and make it. है ना तेजाराम जी, आप भी कह रहे हैं हाँ कि दोबारा से बिल्कुल आप बिल्कुल वो आने तो का नहीं आएंगे और करेंगे। और क्योंकि जैसे अनुपम मिश्र जी के साथ हमने कम से कम सैकड़ों तालाब और नालियों के साथ उनकी मौजूदगी में गए देखा। और राजमिता जी जो झाग गांव है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें कालाडेरा के लोगों को थोड़ा एक एक्सपोजर लेना है, जहां ये कम्युनिटी के लोग पूरा उस तालाब को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उस तालाब से पूरा गांव पानी पीता है डायरेक्ट, कोई फिल्टर नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, पानी पीता है। तो कम से कम 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी गंदगी नहीं करेगा, कोई भी गोबर नहीं डालेगा, क्योंकि वही उनका जिंदगी है। जैसे अभी बता रहे थे हमारे साथी कि भाई जब हम इसको अपनी जिंदगी और उससे जोड़े तो लोग समझेंगे। और मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी 1 साल में हम कालाडेरा के लोगों को इस लेवल पर लाएंगे कि वो यही चीज करें, उसका एक्सपोजर हो, उनका सेंसिटाइजेशन हो, हम किसी लोगों को ले जाएं डेफिनेट, क्योंकि उन्होंने देख लिया है ये। और हम करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बड़ी खुशी की बात है कि ये एक अलग डायरेक्शन ले गई है डिस्कशन, एंड यू नो देयर इज सम सॉल्यूशन मेकिंग एंड पाथवे फॉर फ्यूचर, and I really hope, you know, in a matter of couple of more years, maybe not a year, couple of more years, you know, we will see a successful community project in Kaladera as well, under the Definitely. direction of Meeta ji, Tejaram ji, Krishna Kumar ji, and other collaborators Definitely. who have you know, who have been mentioned in this discussion. I would like to thank, before we close, Meera, would you want to add something here before we close the discussion? नो सुरुचि, मुझे आज सबको सुन के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ एक सही में एक पहल है, एक पहल एक पड़ाव पे आई है। और ये आपने ये क्या काम किया वो आपने हमें समझाया, क्या दिक्कतें आई है वो समझाया, तो बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रहा। और जो तेजाराम जी ने बहुत सारी बातें की जो एकदम सचोट है कि इसमें कोई एक आदमी अकेला नहीं कर सकता ये काम, नहीं कर सकते। और इसमें हर प्रकार के लोगों को जुड़ना है। और ये एक क्या कहते हैं, एक फेथ है, होप है, एक उम्मीद है कि ये हम करेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ये आज बात एंड भी हो रही है, और बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मीरा आपसे अग्री कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच जी, कृष्ण कुमार जी, तेजाराम जी, थैंक यू जी। मीता, धन्यवाद आपने हमें ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। एंड होप करते हैं कि हम आगे भी इस तरह की कॉन्वर्सेशन करेंगे विद एन अपडेट, एंड आपसे जुड़े रहेंगे। नहीं, आपसे हमें बिल्कुल भी अच्छा जुड़े लगा, रहेंगे। फीडबैक मिला हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, ओके, थैंक यू। बाय बाय बाय। बाय। बाय।